હલો, ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આજે આપણે ધોરણ 5માં વિષય હિન્દી પાઠ 10 જે કાવ્ય છે જે આપણે આજે સ્ટાર્ટ કરીશું. હવે ગાન કરીશું. તમે પણ મારી સાથે ગાજો. ઓકે. फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना, सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आग जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ઊંચે ही પર ચઢના. કેવી મજા આવી કાવ્ય ગાવાની. તમે હવે આપણે કવિતાનો માતૃભાષામાં એટલે કે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરીશું. ફૂલો સે નિત હસના सीखो, भंवरों से नित गाना. तो આ કવિતાનો સરળ અર્થ શું થાય? બરાબર. तो फूलों से सदा हंसते रहना सीखने के लिए बोला है, और भंवरों से हमेशा गाते रहना सीखो, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. तो पेड़ की झुकी हुई डालियों से हमें सिर झुककर नम्रता रखना सीखना चाहिए. હવે એનું ગુજરાતી કરીશું. તો ફૂલો પાસેથી હંમેશા હસતા રહેવાનું શીખો, ભમરા પાસેથી હંમેશા ગાતા રહેવાનું શીખો, અને વૃક્ષની નમેલી ડાળીઓ પાસેથી સદાય માથું નમાવાનું શીખો, એવું આપણને આ પંક્તિમાં કહે છે. બરાબર. જો તમને ચિત્ર બતાવ્યું છે ફ્લાવર, અને ડાળી પણ કેવી નીચે ઝૂકેલી બતાવી છે ને, તો ડાળીની જેમ આપણે નીચે ઝૂકતા શીખવું પડે. બરાબર ને. પછી બીજી પંક્તિ છે, એનો સરળ અર્થ થશે, सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना. એટલે કે हवा के झोंकों से मन में कोमल भाव बहाने के लिए सीख लो. એટલે કે એનું ગુજરાતી થાય, પવનની લહેરો પાસેથી મનમાં કોમળ ભાવનાઓના વહેલાવતા सीखो, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना. એટલે કે दूध और पानी से एक दूसरे से मिलना और मिला देना सीखो. એટલે શું કહે છે ગુજરાતીમાં? દૂધ અને પાણી પાસેથી એકબીજાને ભળવાનું અને ભેળવી દેવાનું सीखो. હવે છે ત્રીજી લાઇનિંગ, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना. તો એનો સરળ અર્થ શું થાય હિન્દીમાં? सूरज की किरणों से स्वयं जगना और दूसरों को पण जगाना सीखो, लता और पेड़ों से, फिर कहते लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. तो लता और पेड़ों से सबके गले लगाने के लिए बोल रहे हैं. તેનું ગુજરાતી થશે, સૂરજના કિરણો પાસેથી જાગવાનું અને બીજાઓને જગાડવાનું શીખો, વેલા અને વૃક્ષો પાસેથી સૌને અપનાવવાનું શીખો. હવે છે ચોથી લાઇનિંગ, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना. એ શું કહે છે? मछली से अपने देश के लिए तड़प तड़प कर मरना सीखो. ગુજરાતી શું થશે? માછલી પાસેથી પોતાના દેશ માટે તડપી તડપીને મરવાનું सीखो, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना.
શું કહે છે કે पतझड़ के पेड़ों से दुख से धीरज धरना सीखो। पानखરના વૃક્ષો પાસેથી દુઃખમાં ધીરજ રાખવાનું શીખો। હવે પાંચમી પંક્તિ છે, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। तो जितना हो सके इतना अंधेरा अज्ञान दूर करना तुम दीपक से सीखो। એટલે કે શક્ય હોય તેટલો અંધકાર અજ્ઞાન દૂર કરવાનું તમે દીપક પાસેથી શીખો। પૃથ્વી से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। શું કહે છે प्राणियों की सच्ची सेवा कैसे की जाती है यह पृथ्वी से सीखो। એટલે કે પૃથ્વી પાસેથી પ્રાણીઓની સાચી સેવા કરવાનું શીખો। છઠ્ઠી પંક્તિ છે, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। એટલે કે पानी की बहती हुई धारा से जीवन के मार्ग में हमेशा आगे बढ़ना सीखो। એટલે કે પાણીની વહેતી ધારા પાસેથી જીવનમાં સદાય આગળ વધવાનું શીખો। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुएं से सीखो कि जीवन में हमेशा उन्नति कैसे ही જાય। તો તેનું ગુજરાતી થશે, ધુમાડા પાસેથી શીખો કે હંમેશા ઊંચે ને ઊંચે કેવી રીતે ચડવું અને તેની ઉન્નતિ કેવી રીતે કરવી। આ કાવ્યમાં આપણને અલગ અલગ શીખવાનો ઉદ્દેશ આપે છે। હવે આપણે જોઈશું આ કાવ્યના શબ્દાર્થ। ફૂલ, ફૂલનું મિનિંગ થશે પુષ્પ। सूरज, सूरजનો મિનિંગ થશે રવિ ઓર ભાનુ। નિત્ય, નિત્ય સદા અને ઓર પ્રતિદિન। લતા, લતાને શું કહેવાય વેલ। ભવરો, ભવરો એટલે મધુકર। ભવરા, પતઝડ, પતઝડ એટલે પત્તે ઝડને કી ઋતુ અથવા પાનખર। તરુ, તરુ એટલે પેડ અને વૃક્ષ। ધીરજ, ધીરજ એટલે ધૈર્ય ધીરતા। પછી હવા, હવા વાયુ પવન। પૃથ્વી, ધરા અવની। कोमल, नाजुक मुलायम। जलधारा, पानी की धारा या प्रवाह। पानी, जल, नीर। હવે છે मुहावरे। शीश झुकना तो विनम्र होना। कोमल भाव बहाना, सुंदर विचार प्रकट करना। ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना। अभ्यास, पढ़िए और बोलिए। हंसना, भौरा, स्वदेश, तड़प कर, अंधेरा, पृथ्वी, दुआ, ऊंचा। प्रश्न 2, कविता का सामूहिक और व्यक्तिगान कीजिए। जे આપણે સામૂહિક જ્ઞાન કર્યું એવું તમારે જાતે કાવ્યનું જ્ઞાન કરવાનું છે। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है। तो उत्तर, कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात कही गई है। फूल, भौरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि। बराबर। 2, स्वयं देखे हुई प्रकृति की अन्य चीज़ों के नाम लिखिए। तो तमे जोई होय एवा नाम लखवाना छे। तो नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु, पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि। હવે છે પ્રશ્ન 4, किससे क्या सीखे सोचकर बताइए। તમને કાવ્યમાં આપેલું જ છે તો આપણે તેના પરથી જવાબ લખવાના છે। दीपक से, तो दीपक से हमने क्या सीखा। तो दीपक से हमने अंधेरा अज्ञान दूर करना सीखा। भौरों से, तो भौरों से हमेशा गाते रहना। फूलों से, तो फूलों से हमेशा हंसते रहना सीखने के लिए कहा है। फिर 4, हवा से कोमल भाव बहाना। 5, दूध और पानी से मिलना और मिलाना सीखा हमने। सूरज की किरणों से हमने क्या सीखा, जगना और जगाना। लता और पेड़ों से हमने क्या सीखा, सबको गले लगाना।
धुएं से, तो धुएं से हमने सीखा ऊंचे चढ़ना। मछली से हमने सीखा स्वदेश के लिए मरना। जलधारा से हमने क्या सीखा? जीवन पथ पर आगे बढ़ना। पृथ्वी से हमने क्या सीखा? प्राणियों की सच्ची सेवा करना। पतझड़ के पेड़ों से हमने क्या सीखा? दुख में धीरज धरना। હવે છે પ્રશ્ન 5, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर पढ़िए। आपको पढ़ना ही है। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो मैंने ही और किसने ही? किसी ने ही नहीं। मैंने ही दी थी, तो दूसरे किसी ने नहीं दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो कल ही दी थी, परसों नहीं, એવું मीनिंग થાય, બરાબર ને? હવે છે मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो आपको ही और किसी को नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो यह क्या है? यह किताब दी थी और कोई किताब नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो किताब ही दी थी और कोई चीज़ नहीं दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो किताब दी है और आपको कैसे मना कर सकते हो? ये 2 है। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। अब आप हमको जैसे ये सब पढ़ा ऐसे ही पढ़ना है। तो मेरे के नीचे हम अंडरलाइनिंग करेंगे। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो मेरे ही जन्मदिन पर और किसी के जन्मदिन पर नहीं, बराबर ने? मेरे जन्मदिन पर આપણે अंडरलाइनिंग करीશું। पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो जन्मदिन पर ही और किसी के दिन नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों के नीचे अंडरलाइनिंग करीશું। दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो दोस्तों ने ही और किसी ने नहीं दिया उपहार। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो मुझे नीचे अंडरलाइनिंग करशो। मुझे ही और किसी को नहीं दिया। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो उपहार नीचे अंडरलाइन करशो। उपहार दिया और कुछ नहीं। 3 किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। तो किसान ने अंडरलाइनिंग करीशू। किसान ने बैल को रस्सी के कसकर बांधा, तो किसान ने ही और किसी ने नहीं बांधा, बराबर ने? किसाने ही बांधा। किसाने એટલે बैल के नीचे अंडरलाइन करीशू बैल को, तो बैल को ही और किसी को नहीं। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, तो रस्सी ने नीचे अंडरलाइन करीशू અને કહીશું रस्सी से ही बांधा, जंजीर से नहीं। किसान ने बैल को रस्सी के कसकर, कैसे बांधा? कसकर नीचे अंडरलाइनिंग करशू, तो कसकर बांधा, ढीला नहीं बांधा। 4 बगीचे में तितलियाँ मंडराने लगी। तो बगीचे में अंडरलाइनिंग करीशू। बगीचे में तितलियाँ मंडराने लगी। बगीचे में ही और किसी कहीं नहीं। એ तितलियाँ बगीचाમાં જ મંડરાય છે, બીજી જગ્યાએ નહીં। बगीचे में तितलियाँ मंडराने लगी। तितलियाँ नीचे अंडरलाइन करीशू ने तितलियाँનો मीनिंग જોઈશું। तो तितलियाँ ही और कोई नहीं। बगीचे में तितलियाँ मंडराने लगी, तो मंडराने लगी नीचे अंडरलाइनिंग करीशू। मंडराने ही, उड़ने नहीं। 5 मैं कल रामपुर गया था। तो मैं के नीचे अंडरलाइनिंग करीशू। मैं कल रामपुर गया था, तो मैं ही गया था और कोई नहीं मेरे साथ था। मैं कल रामपुर गया था, तो कल के नीचे अंडरलाइनिंग कल ही गया था, परसों नहीं। मैं कल रामपुर गया था, तो रामपुर के नीचे अंडरलाइनिंग रामपुर ही गया था और किसी गाँव नहीं। હવે આપણે સ્વાધ્યાય નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું। હવે તમારું આજનું હોમવર્ક છે હિન્દીની નોટમાં તમારે પાઠ 10 હેડિંગ આપવાનું શીખો। કાવ્ય લખવાનું છે આખું, બરાબર?
પછી શબ્દાર્થ લખવાના, મુહાવરે લખવાના. બરાબર. થેન્ક યુ. બાય બાય. હેવ અ નાઇસ ડે.